خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ اس وقت ہم راول پنڈی کے علاقہ راحت کالونی میں موجود ہیں جو کہ تھانہ ریس کورس کی حدود بنتے ہیں، اور میرے دائیں جانب آپ کو ایک الیکٹرک پول یعنی بجلی کا کھمبا نظر آ رہا ہے۔ اس کھمبے کے ساتھ بالکل اس جگہ پر ایک شخص کو باندھا گیا، اس پر تشدد کیا گیا، اس کو نشان عبرت بنایا گیا اور یہ رجسٹر کروایا گیا پورے علاقے میں۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے کہ ہمسا کوئی ہے تو سامنے آئے۔ اقتدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، سرکار کا دیا ہوا منصب بھی ہے، اور آپ کی ٹیکس منی سے تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ تو چودھری اور کون ہوتا ہے؟ یہ تو چودھری ہوتے ہیں۔ تو پھر بتایا گیا کہ جناب طاقت ہے اور طاقت دکھائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایشو از کہ یہ سامنے گلی میں اوپر اس کا گھر تھا، رہائش تھی، وہاں سے اس شخص کو گھسیٹ کر لایا گیا، مارا گیا پہلے اوپر، پھر اس کو سیڑھیوں سے دھکا دیا گیا۔ یہ آپ سامنے دیکھیں، بے بہا تشدد، بے انتہا تشدد، انسانیت سے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے حیوانیت اپنانے کے بعد تشدد کیا گیا۔ بتایا گیا کہ جانور بھی کیا جانور ہوتے ہوں گے، ہمسا کوئی جانور ہے تو سامنے آئے۔ پھر اس کو یہاں لا کر باندھا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ترلے کرتے رہے، اے یار جاندی کرو تیرے خدا دن اے داڑھی نو ہاتھ لا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہاں سے کام چھوڑ کر آئے، کچھ لوگ اس گھر سے آئے، کچھ لوگ ادھر سے، کچھ ادھر سے نکلے، اور سب نے، اور بہت سارے لوگ بچانے والے بھی تھے، لیکن ایونچولی ہوا یہ کہ وہ شخص کی جان بچ گئی ہے۔ اب اس کا ایک بیک گراؤنڈر ہے، تھوڑا سا پین کروں گا۔ میں ہر اس شخص سے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس معاشرے کا منشیات اور ڈرگز نے بگاڑا کچھ نہیں ہے، میں آج کا پروگرام اس کے لیے کر رہا ہوں، اور میں دعا اللہ سے کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ جن کے ہاتھ میں اختیار، منصب اور طاقت ہے، ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اس لمحہ جب یہ طاقت میں ہے ان کے گھروں سے دکھا انہیں۔ ہوتا کیا ہے جی کہ یہ جگہ دو بچیاں یہاں سے واک کرتے ہوئے جا رہی ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ابھی کیا ہوگا، وہ بڑا کمفرٹیبلی یہاں سے موو کر رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں جیسے معصوم بچیاں کرتی ہیں۔ وہ تقریباً اس چوک میں پہنچتی ہیں، ان کو یہاں پر کوئی اندازہ نہیں تھا۔ یہ اوپر سی سی ٹی ویز لگے ہوئے، یہ بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی لگا ہوا ہے، غالباً اس کیمرے کی فوٹیج ہے یہ جو اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہی ہے۔ بچیاں اپنی مستی میں they were quite confident کہ وہ اپنے گھر میں ہیں، ان کو کیا پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب بچیاں یہاں پہنچتی ہیں اس جگہ پر، ایگزیکٹلی اس مقام پر جہاں میں کھڑا ہوں، in the meanwhile ایک شخص پیچھے سے دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ ایک بچی کو یہاں بالوں سے پکڑ لیتا ہے اور دوسری بچی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دروازہ کھلا ہوتا ہے، یہ والا، وہ بچی گھر میں گھس جاتی ہے، وہ بچی کو اندر پیچھے گھر میں چلا جاتا ہے۔ ایک بچی کو بالوں سے پکڑا ہوا ہے، دوسری بچی کو وہ اندر سے برآمد کر کے لاتا ہے، اور دونوں بچیوں کو لا کر اس جگہ پر بالکل ایگزیکٹلی سپاٹ پر وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اہلِ علاقہ اکٹھے ہوتے ہیں، بچیوں کی جان چھڑواتے ہیں، اور اس شخص کا موقف کیا ہے کہ یہ سانپ ہیں، یہ سانپ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ایک اماں جی یہاں کھڑی ہیں۔ السلام علیکم ماں جی۔ السلام علیکم، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ بے شک کریں۔ آپ کی صحت اچھی ہے؟ اللہ کا شکر۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پر جو کچھ ہوا ہے؟ بالکل، ہم نے چھڑایا بھی ہے بچیوں کو، ہم نہیں ان کو، کہ ہمارا گھر تھا تو میں ادھر ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بندے نے کیوں آ کر بچیوں پکڑا؟ کیا کہتا ہے، سانپ ہے؟ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں، ہم نے بس یہی دیکھا کہ نشے کی حالت میں تھا، ادھر سے بھاگتا آیا،
जब ये हमारे बोरन वाले काम कर रहे थे, हमें चीखों की आवाज आई, बच्चियों की इतनी सख्त चीखों की आवाज आई है ना कि अल्लाह जाने के अभी भी कानों से नहीं निकल रही। जब हम पहुंचे हैं, मेरी बच्ची थी, मैं, हम सारे पहुंचे हैं, वो उस टाइम उस अंदर से दोनों हाथों से वो गेट खुला एक बच्ची को इस हाथ से और एक बच्ची को इस हाथ से, एक तो भाग के भाई संग अपनी जान बचाई या वो अंदर जो दरवाजा खुला मिला वो भागता आया, दूसरी को भी बालों से पकड़ के तो अंदर ही ले गया। वो ये बोरन वाला कह रहा था, वो मैंने नहीं देखा। जब मैं निकली हूँ ना तो उन्होंने चढ़ाया नहीं छुट्टा, दोनों हाथों से बच्चियों को ऐसे खींच के ना कि सीटा ना, एक को वो बोरनवर का बच्ची का ऐसे चूक पकड़ी हुई थी, वो फिर हमने भी चढ़ाई। कहता नहीं ये छोड़ दो, मेरे नज़दीक कोई ना आए, ये मजूज है। अच्छा, तो मेरी अपनी बच्ची हैं। हाँ। अच्छा, हम थोड़े से इसमें भी पड़ गए थे, शायद इसकी अपनी बच्ची है, बाप है, नहीं भतीजी है, ऐसे में शक पड़ गया। फिर भी जो क्या नाम है, उधर से खालिद साहब निकले हैं, जब बड़ी बच्ची जो उसकी है वो कोने में लेके आए। वो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं? नहीं। अच्छा, ये सब नहीं रहते। अच्छा, ये जिनके कैमरे लगे? जी, जिनके कैमरे। इन्होंने कोई पहचान लिया, अपनी बीवी ने कहा जा खालिद साहब के वो बच्चियों को छड़ाओ। वो अंदर ही से डंडा लेके आया, खुद ही तैयारी के साथ आया, और उसने यूं हाथों में मारा ना सोटियाँ, वो उनकी वीडियो जो बनी हुई है, कैमरे बनने हुए, उसने मारा है तो तब बच्ची को उन्होंने छोड़ा है। फिर इस तरफ भागता गया, ऐसे भाग के अपने उधर दूसरी गली में पिछली गली में उसने बैठक किराए में ली हुई थी, वो उसने नीचे से कुंडी लगाई है एंट्री की, फिर ऊपर कमरे की लगाई है, फिर बाथ की लगाई है। ज़ाहिर उसका बाप था, उनका खून खोला है, उनको तकलीफ हुई है। उन्होंने मारा पीटा है? उन्होंने मारा पीटा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो उनका हक बनता है। अजाब नहीं बनता। माँ जी, मैं आपके बच्चों की तरह हूँ ना? जी बिल्कुल। मैंने पहली बात शुरू यहाँ से की है, जो गलती जो जुल्म इसने की है, जुल्म बहुत। मैं आपको एक चीज बताऊँ, नशे की वजह से वो इस वक्त ज़हनी तौर पर माऊफ है। मसला ये नहीं था, हमें अच्छा, पुलिस को बुलाना चाहिए। जी, पुलिस को बुलाया इन्होंने, हमें इस मारने की बजाय मर जाता, फिर खंबे के साथ बांधना। बिल्कुल खंबे के साथ। इतना भी ठीक किया, इतना भी किसी ने नहीं मारा है भाई, मारा है ज़हर है, हमारी उससे दुश्मनी नहीं जिसने किया है ना, हम उसके दाने खाते हैं ना इसके। हम जो बात आपसे बताई है वो अल्लाह की रज़ा के सच बताया, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के सच बताया है, कोई डरने की बात ही नहीं। हमें जो अल्लाह के यहाँ भी हमने जवाब देना है। आज हम किसी की बच्ची के लिए आवाज उठाएंगे ना, बोलेंगे ना, तो कल हमारी भी बेटियां सेफ रहेगी, अल्लाह उनके भी हिफाजत करेगा। हमारे बच्चे इतने डर गए हैं कि वो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। नहीं जाते मेरे बच्चे, क्या नाम है आगे पीछे छोड़ने जाती हूँ, ये 5 ही 7 ही घर है, पूरे मोहल्ले के बच्चे सहम गए नहीं है स्कूल। वो कहते हैं हमें डर लगता, वो पकड़ लेगा, उसको पकड़ा है, मैं भी मैं आपको बताता हूँ जी कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे इलाके में, आई बिलोंग्स टू काड़ा, तो गवर्नमेंट कॉलोनी में एक शख्स हुआ करता था जो कि ज़हनी मरीज था, और उसको छीमा छीमा कहकर बुलाते थे। लिटरली आपको बताऊं कि हमें घर से निकलते हुए, घर के बिल्कुल सामने क्रिकेट ग्राउंड था, सामने क्रिकेट खेलने जाने के लिए हमें इस खतरे का शिकार रहता था कि छीमा ना आ जाए। हम छोटे थे, और अगर कोई उसका दूर से आते हुए सर देख लेता था तो पहला काम ये होता था कि 4-6 लड़के इकट्ठे जुड़कर खड़े हो जाते थे। ये बच्चों के खौफ रियलिस्टिक हैं, ये सच है। अब जी यहाँ से आगे चलते हैं कि इस घर में जो एपिसोड हुई उसके बाद क्या मामला हुआ है जी। उसके बाद ये बिल्कुल पिछली गली में इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो घर, जहाँ पर वो जाकर जो उसकी अपनी रिहाइश थी, ऊपर उसने फर्स्ट फ्लोर जो है वो रेंट पर ले रखा था, और फैमिली ज़ाहिर है। मैं इस वजह से कहता हूँ कि नशा जो है ना, ये बहुत बड़ी बदबख्ती है, अल्लाह किसी को इसके करीब भी ना भटकने दे। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। 2018 से मैं ड्रग के खिलाफ लड़ रहा हूँ, ड्रग बिजनेस के खिलाफ, लेकिन हमें हमेशा यही बात की जाती कि तेनों की भाई मेरा मुआशरा जल रहा है। ये जो धुआं उठता आपको इस वक्त नजर आ रहा है, और ये इरफान की सूरत में आपको ये धुआं के अलाव नजर आ रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल नहीं है, ये हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, हजारों खानदान सफरर्स हैं। लेकिन हमें
राख बनने से पहले बच्चे कुछ मामलात को बचा लेना चाहिए। इरफान को उसने गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए था। इस वक्त स्क्रीन पर देखें, ज़हनी अमराज और मंशियात का आदी इरफान गली में जा रहे, सामने दो बच्चियां गई हैं, ये देखें, ये दो बच्चियां आपकी स्क्रीन से गुजर रही हैं। इरफान इनको फॉलो करता है, फॉलो करके ये उन पर अटैक करता है और एक बच्ची को बालों से पकड़ता है, दूसरी बच्ची को पकड़ने लगता है तो बच्ची दरवाजा खुला देखकर किसी दूसरे घर का उसमें घुस जाती है। उसके बाद इरफान इस बच्ची को बालों से पकड़कर अंदर चला जाता है, अंदर से दूसरी बच्ची को भी घसीट कर बाहर लाता है। यानी अमली तौर पर कानून की इस्तिलाह में इसको बाकायदा अगवा कहते हैं। लेकर आता है बाहर, बाहर लाने के बाद मारपीट करता है। इन द मीनवाइल अहलियाने इलाका इकट्ठे हो जाते हैं, घर की ख्वातीन बाहर आ जाती हैं और उसके बाद इरफान को मारा जाता है, पीटा जाता है, निशाने इबरत बनाया जाता है। इरफान जान छुड़ाकर अपने घर पे जाता है तो क्या होता है ये देखें, उसके घर का दरवाजा तोड़कर, जो कि उसने अपनी फैमिली से अलग एक कमरे की सूरत में ले रखा था, अंदर जाते हैं, अंदर जाकर उसको मारते, पीटते, निशाने इबरत बनाते हैं, सीढ़ियों से नीचे धक्का देते हैं, घसीटते हुए लेकर आते हैं और उसके बाद खंबे के साथ बांधकर उसको निशाने इबरत बनाया जाता है। अब ये जो एक हैपनिंग के बाद दूसरी हैपनिंग हो रही है, ये बुनियादी तौर पर मुझे ये चीज कायल कर देती है कि अगर वो ज़हनी मरीज था, उसने अपनी गलत हरकत की जिसको कानूनी तरीके से निपटा जाना चाहिए था, तो ये कौन लोग थे? इसका मतलब ये है कि इरफान और ये हमला करने वाला पुलिस मुलाजिम, ताकतवर तरीन इदारे का मुलाजिम और बाकी लोग जो जत्थे की सूरत में इरफान को खंबे के साथ बांध कर निशाने इबरत बना रहे हैं, रावलपिंडी जैसे शहर में, थाना रेस कोर्स की हदूद में, राहत कॉलोनी में, दे आर इक्वल। तो आज के बाद आप लोगों को कतई तौर पर यह दावा नहीं करना कि आप बड़े बाशऊर हैं, बड़े बासलाहियत हैं। मेरे साथ फैमिली मौजूद है, उनसे समझता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं माफी चाहता हूं बहैसियत इस माशरे का एक बेटा कि एक तो आपके घर में एक ऐसे पेशेंट को, एक ऐसे शख्स को जिसको ज़हनी आर्जा लाहक है, उसको संभालना एक सिचुएशन होती है, और उसके बाद जब वो घर से बाहर जाता है तो वहां पर भी कितना गैर महफूज मामला है। हुआ क्या है और क्या देखा, क्या जूझ क्या रहा है, बीत क्या रहा है इस वक्त? ये 2 साल हो गए कि ये आइस पी रहा था। हाँ। तो आइस की वजह से इसको पीते पीते थोड़ा सा इसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर इसका भाई है कामरान, उसने इसको पेशावर भेज दिया था एक इदारे में ट्रीटमेंट के लिए। जी, ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ से इसकी ट्रीटमेंट हो गई, ये वापस आ गया था। वापस आ गया था तो ठीक ही था तकरीबन। 2 साल से आइस कर रहा था, नहीं कर रहा? जी, 2 साल से आइस का नशा अब भी कर रहा था? अभी भी शायद कर रहा है। अच्छा। तो ये ठीक हो गया था इसके दौरान। घर आ गया, घर में रहता रहा, लेकिन इसका अपना एक माइंड था कि मैं अलग रहूँगा। अच्छा। तो ये ना घर से इसने बाहर जगह अपने लिए ले ली, और बहुत ही अच्छा बच्चा था, आइस पीता था लेकिन सबकी बहुत इज्जत करने वाला था, सबकी। आइस कितने अरसे से पी रहा था? तकरीबन 2 साल हो गए हैं। हाँ। 2-2.5 साल हो गए हैं। थी इसको? ये बाहर से ही बस दोस्तों में बैठते उठते ही कहीं किसी ने लगा दी इसको। तो उसके बाद ये उधर चला गया। तो लेकिन बहुत ही इसके नशे में भी वो हर बंदे की इज्जत करता था, मोहल्ले वालों की, बच्चों की, बड़ों की। तो इंसान किसकी इज्जत कर सकता है वैसे? नहीं भाई, फिर भी ये सब के साथ अच्छा ही चलता था, लेकिन उधर जो हुआ इसके साथ, ये बहुत ज्यादती की गई इन लोगों ने। पुलिस के हवाले करना चाहिए, पुलिस के हवाले इनको चाहिए था। बच्ची के बाल खींचे जो कि कतई नहीं खींचने चाहिए जी। तो इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है, उसको पुलिस के हवाले होना चाहिए। ठीक है भाई, उसने गलती की है, हम मानते हैं कि वो नशे में उसने गलती कर ली है। हाँ। या उसका वो अपसेट था। हाँ। तो इस वजह से, लेकिन इन्हें चाहिए था कि ये पुलिस के हवाले करते ना। इतना बहुत बड़ा बहुत जुल्म उन्होंने नहीं किया कि जितना इन्होंने सब ने मिल के इसके साथ जुल्म किया है। आप इसकी चची लगती हैं? जी हाँ, मैं उसकी चची हूँ। ये अपने घर में क्यों नहीं रहता था? अपने घर में बस वो उसका अपना एक ज़हन था, रहता था अपने घर में। फिर उसके बाद वो कहता है मैंने अपना अलग से मैंने रहना है। फिर भाई ने अलग से उसको जगह ले दी
اور وہ मोहल्लेदार भी सब इसके साथ बहुत अच्छे थे, क्योंकि ये सब जानने वाले थे उसके। आगे आप भी चाची हैं जी? जी। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बहन ये क्या हुआ है और नालायकी कहाँ पर हुई है? 3-4 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि फैमिली का फेलियर है, जी। क्या आप ये समझती हैं ये सच है? दूसरे नंबर पर माशरे की नाकामी है। तीसरे नंबर पर खुद इरफान की अपनी नालायकी का नतीजा है। इन तीनों में से आप सच क्या समझती हैं? ये तीनों सच हैं? तीनों तो सच नहीं है, वो तो अच्छा था, समझ आइए, सब फैमिली के साथ आना जाना भी करता था, आइस का नशा करता था, बरेल इतना नहीं करता था कि जितना इशू हुआ यानी कि ना। तो फिर उसको जो है उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट किया, उधर से इलाज करवा के आया, फिर घर में ही रह रहा था। तो फिर जो है उसने माइंड बनाया कि नहीं मैं बाहर रहूँगा। फिर उसके भाई ने कहा अच्छा चलो ठीक है तुम्हें भाई ले लेते हैं। काम धंधा करता था? नहीं करता था? नहीं, काम वगैरह नहीं करता था, बस भाई की शॉप पे जाता था तो बस वहाँ से फिर वापस आ जाता था। खर्चा वगैरह भाई देता था उसका। भाई देता था? जी। तो ये जो वाकया हुआ है मारपीट का, अगर इसमें मर जाता फिर? देखिए उसने तो गलती की है क्योंकि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब था। तो अगर उसने गलती की है तो इन लोगों को चाहिए था कि उसके साथ ऐसा सलूक ना करते, मुक्का दफड़ शफड़ लगा लेते, बंद कर देते उसको या पुलिस के हवाले कर देते। इतना जुल्म ज़्यादती करना तो देखिए अच्छी बात नहीं है ना। तो आप लोगों को जब पता चला तो आप लोगों पर क्या बीत रही थी? ज़ाहिर है हम लोगों पे क्या बीतेगी, हम तो खून के आंसू रो रहे थे कि हमारा बच्चा है, हमारा भतीजा है, हमारे घरों में आता जाता था, सबके साथ हंसता खेलता था। भतीजे अपने बच्चों की तरह ही होते हैं, इसमें कोई दूसरी बात तो नहीं है। जी जी। अगर ये मैं हर माँ के लिए, हर बहन और बेटी खासतौर पे जो बीवियां हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई शख्स नशे का आदी हो जाता है उसके साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है। जी वो तो ज़ाहिर है, वो तो ईमानदारी से बात कर, वो तो बहुत मुश्किल बात है। बहरहाल फिर भी इंसान अगर शादीशुदा भी होता तो फिर भी बहुत मुश्किल होता। एक और बहन भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहन इरफान आपका क्या लगता है? मेरा कज़न भाई था। कज़न है जी। ये क्या चल क्या रहा है? देखिए बच्चा, एक शख्स जो इस अजीब से मामले में दाखिल हो गया है, इसे निकलने का कोई रास्ता आपको नजर आता है? नहीं जी। तो ये हुआ क्या है? उसके साथ बहुत गलत हुआ है, वो बहुत अच्छा था हमारा कज़न। कभी उसके आप साथ लोगों बहुत ने ये घर में बैठ के ये सोचा है कि ये मंशियात आपकी फैमिली में कोई और भी ड्रग लेता है? नहीं। पक्की बात है जी। ये ड्रग्स खरीदता कहाँ से? कोई ऐसी कभी घर में बात हुई है? नहीं, बाहर दोस्त। क्या समझती हैं कि क्या इरफान को उन बच्चियों के बाल खींचने चाहिए थे? नहीं खींचने चाहिए थे। अच्छा मैं आपको ऑनेस्टली नाज़रीन बताऊं, मैं इनको ज्यादा तंग नहीं कर रहा। इस मुआशरे का कॉमन रिएक्शन है कि कोई शख्स किसी की 2 बच्चियों के बाल खींचेगा ना जाके और उसको घसीटेगा उनको सड़क के ऊपर सांप सांप कह के, तो उसका रिएक्शन कुछ तो आएगा। लेकिन रिएक्शन, प्रॉब्लम इज विद द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता था, इस रिएक्शन में पुलिस को इन्वॉल्व किया जा सकता था, इस रिएक्शन में उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी, बजाय इसके कि उसको खंबे के साथ बांध कर निशान इबरत बनाया जाता और उसको बकायदा उसकी जान लेने की कोशिश की जाती। आगे भी चीजें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दस्तबस्ता दरखास्त कि हमें ज़हनी मरीजों के मुआशरे को किसी न किसी तरीके से बेहतरी की तरफ लाना होगा। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नशा और नशे की लत के नतीजे में ज़हनी अमराज और कहानियाँ से होते हुए आपको एक ऐसा इंसान बना देती है कि आप लोगों की बहनों बेटियों पर गलियों में हमला करना शुरू करते हैं, और जब आप हमला करते हैं उसके नतीजे में अगले साई भी डांगा सोटे लेके आ जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, आप पर तशद्दुद करते हैं जो कि गैर कानूनी है, और उसके बाद लाकर आपको इस खंबे के साथ बांधते हैं, और शायद अगर कुछ सियाने लोग अंदर ना होते तो इसकी जान ले लेते हैं। मसला क्या है कि आपने अपने ख़ानदान को 2 पुड़ों के दरमियान पीस दिया हुआ है। वो साहिबान भी मौजूद हैं जो एनी शाहिदीन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ये अल्लाह का शुक्र है। आप मौके पर मौजूद थे? जी मैं मौके पर मौजूद था। ये क्या हुआ, आपने क्या देखा था? वो ईमानदारी देखिए, बात हक से देखो जी, हम ईमानदारी से बात करेंगे
ऐसे हुआ है कि बच्चियाँ इधर से गई हैं, इधर से बच्चियाँ आई हैं, इधर से ये सामने उनका घर है। ये सामने घर है, इधर से बच्चियाँ आई हैं, बच्चियाँ उस कोने में चली गई। ठीक है। ये साथ ही मेरा घर है। हाँ। उधर देखो ये सामने। अच्छा, साथ ही मेरा घर है। जब बच्चियाँ उसने पकड़ी हैं हाँ, तो शोर शराबा पड़ा है। बच्चियां उसने क्यों पकड़ी हैं? ये तो हम कुछ नहीं कह सकते कि उसने बच्चियाँ क्यों पकड़ी हैं। ठीक है जी। हाँ। बच्चियाँ उसने पकड़ी हैं, एक बच्ची उसने पकड़ लिया, दूसरी बच्ची जो है अंदर चली गई है, भाग गई है, वो भाग गई है, बालों से उसने अंदर पकड़ा। बालों से पकड़ लिया। दोनों बच्चियाँ अंदर, ये 2 बंदे और उसके पीछे चले गए। आगे बच्चियाँ उसने उठा खींची हैं और पीछे आ गया। बच्चियाँ उसने छोड़ी नहीं है। ठीक है जी। अपने कब्जे में रख, बालों से पकड़ा? हाँ, बालों से पकड़ा हुआ ग्रिप में है। हाय। अच्छा, बच्चियों को वो आपने देखा होगा कि वो जो है ना उनके टकरे लगा रहा है। ठीक है जी। बच्चियों की दोबारा कहें? उनकी वो आपस में बच्चियों के बाल पकड़ के तो उनकी टकरे मार रहे हैं। टकरे मार रहा है। अच्छा, जब शोर पड़ा है, बच्चियों ने शोर डाला है, तो हम भी घर थे, सारे महल्ला वो इकट्ठा हो गया। हमने सब ने मिल के उसको छड़ाया। उधर हमने ये नहीं कि ऐसे वो छोड़ रहा था, हमने उसको कि नॉर्मल जो है कि वो किया, समझ करके फिर उसको कुटा मारना पे है। कुटा मारा है। अच्छा, फिर उसको रिलीज़ किया। ठीक है हाँ। जी। एक बच्ची रिलीज़ करवाई है, फिर दूसरी बच्ची रिलीज, फिर उसके बाद जो है, अच्छा, हम उधर ही खड़े थे, वो फिर भाग गया, इधर से भाग गया और इधर चला गया, फिर इधर आया। हमें नहीं पता कि वो इधर आ गया। आपको पता था कि ये अच्छा। बंदा कौन है? नहीं, हमें कोई पता नहीं था। आप इसको नहीं जानते? नहीं, रहता है इधर, हमारा ये घर है, हम इसको नहीं जानते। हाँ। ये काफ़ी रह रहा है, लेकिन मैं उसको नहीं जानता हाँ। ज़ाती तौर पर। लोगों को तो पता चल गया होगा ना? लोगों को पता होगा, बताया भी होगा। अच्छा, आपको। बताया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था ये बंदा कौन है, इधर रहता है या नहीं रहता। हाँ। वल्ला ये समझ- ज़हनी मरीज था या जो- नशे की हालत में? नहीं, देखो उसकी जो हालत नज़र आ रही है आपको, तो वो तो ज़हनी मरीज तरह की नज़र आ रहा है। हाँ। क्योंकि ऐसे उसके पाँव में जूते भी नहीं है। हाँ। ऐसे उसकी हालत जो है, मैं तो हालत से देख, क्योंकि मेरा उसके साथ ना कोई वास्ता है, ना कोई लैन, ना मैं उसको जानता हाँ, हूँ। हाँ। ठीक है जी। जब रिलीज कराया, वो उधर से भाग गया। ये पिछली गली से घूम के यहाँ दुकान पे हाँ, है। हमें नहीं पता वो इधर कि किधर गया या नहीं किधर गया। फिर उसके वारस आ गए हैं बच्चियों के, वो फिर आए हैं, उन्होंने पीछे किसी ने बताया कि ये इस घर में गया। ठीक है जी। अच्छा, वो फिर आए हैं, आगे फिर जो किया उन्होंने। किसी ने 15 पे कॉल की, पुलिस को बुलाया? हाँ, 15 में उन्होंने कॉलें की हैं, पुलिस और नहीं? पुलिस नहीं आई है। ठीक है जी। हाय। हाँ, वो काफ़ी कॉलें की है, वो तो पुलिस कहते हैं- वाले की बेटियां पिटी थी हाँ, और एक मुबैना नशई और मुबैना ज़हनी मरीज जो है वो दूसरे जवाब पे पिट रहा है और पुलिस नहीं है। पुलिस नहीं आई है। वो काफ़ी टाइम तक, जब तक वो इधर उन्होंने लाया, इधर तशद्दुद हुआ, खंबे के साथ बांधा है। जब समझ- खंबे के साथ बांधा गया तो हाँ। आप लोग यहीं पे थे? हम इधर ही थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इरफान के भाई हैं? जी जी बड़े हैं छोटे हैं? जी, मैं बड़ा भाई हूँ उससे। अच्छा, जब ये वाकया हुआ जी आप आए थे यहाँ पे? जी, मैं आया था, मेरे आपको साथ इत्तला कैसे हुई थी? हम काम कर रहे थे, मेरे छोटे भाई को क्या ना, काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर टाइप हूँ, इस तरह अच्छा। मतलब सप्लाई देता हूँ। मेरे छोटे भाई को कॉल आई किसी दोस्त की कि यार आपके भाई को कोई मार रहा है। मैंने कहा शायद वो नफसियाती मरीज सा है, किसी से लड़ रहा होगा, झगड़ रहा होगा, किसी ने चांटा मार दिया होगा। मैंने कहा खैर है, कुछ भी नहीं, किसी से छेड़ता नहीं है। वो पहले भी किसी से छेड़ता नहीं था, जब से ज़हनी इसकी हालत ख़राब हुई ना, तो किसी को नहीं छेड़ता था, वो बस पड़ा रहता, सोया रहता था हर टाइम। जब दोबारा कॉल आई तो मुझे कहता है भाई कि यार वो उसको मार रहा है, किसी ने खंबे से बांधा है। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, आधा मोहल्ला में जानता है, वहाँ पे पुराने रिहायशी हैं, कभी ऐसी बात हुई नहीं है। फिर मैं और मेरे चचा और हम छोटा भाई और एक और हमारे साथ लड़का, हम 4 बंदे बाइक पे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ था नी मुर्दा हालत में, कोई उठा ही नहीं रहा था उसके आगे, वो सारों ने डरा के रखा इब्तदाई था। तौर पर आपने भी उस बात को नॉन सीरियसली लिया? जी ना, सीरियसली आपने ऐसे ही समझा कि यार एमी मारी जा रहा है। जी, इसी तरह है। अगर आपने बर वक्त चीजों को सीरियस लिया होता जी, जी। तो हो सकता है एपिसोड खंबे तक कम से कम ना आता। जी, इसी तरह है। ऐसे ही है ना? जी, ऐसे ही है। आगे क्या हुआ? फिर जब मैं इधर आया, मैंने इसको कोई भी उठाने वाला नहीं था। क्यों? इन्होंने मैटर ऐसा बनाया था, हमारी इज्जत पे हाथ डाल दिया, फलाना ये कर दिया, वो कर दिया। मैं आया, मैंने कहा किसने इसको मारा, कोई आगे नहीं आया। मैंने उसको उठाया, ऊपर ले गया, 112 122 वालों को बुलाया, उसको मैं वहाँ, पहले मैं थाने लेके जा रहा था, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि मुझे शायद मैं अगर उसको लेट लेके जाता, हो सकता मर भी जाता, उसको कुछ हो जाता। मैंने उसको हॉस्पिटल लेके जाना बेहतर समझा। वहाँ पे जाके मैंने इसका मेडिकल कराया, थाने गया हूँ एप्लीकेशन देने, तो हमसे पहले वो मौजूद थे। और उनको ये भी पता है कि ये अजूज मौजूद कह रहा है, कभी कह रहा है सांप है। तो एक नॉर्मल बंदा कभी भी सांप नहीं कहता किसी को, या अजूज मौजूद नहीं कहता। उनको पता होना चाहिए था कि यार एक बंदा आम तो नहीं है, चप्पल उसके उतरे हुए हैं, भाग रहा है। कर सकता हूँ? जी जी, बड़ी माफी के जी जी। साथ। हाथ मिलाएं, पहले वादा करें मुझे माफ करेंगे। मैं अल्लाह माफ़ करने वाला, मैं क्यों माफ़ करूँ?
पहली चीज ये कि मुझसे पीछे भी सवाल किया गया, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है। एक बेटा। अल्लाह ताला आपको बेटे भी दे, आमीन। बेटियां भी दे, क्योंकि आमीन। बेटियां रहमत होती हैं। आमीन। और अल्लाह के नबी ने इस तरह 2 उंगलियां मिलाकर ये बताया कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, अच्छी परवरिश, वो रोज़े महशर मेरे साथ इस तरह होगा। जी तो ये बेटियां बड़ी सादत की चीज़ हैं। जी जी। अगर किसी की बेटी को कोई इस तरीके से बालों से पकड़े और वो आपके सामने बताया कि पकड़ के वो इस तरह टकरें करा रहे हैं, धाड़ 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 धाड़, और छुड़वाने के लिए घर से डंडा लाकर उसके हाथों पे मार के छुड़वाना पड़ा है, जी। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ईमानदारी से बताना। मैं ईमानदारी से बताता Fabricated बात हूँ, नहीं मैं ईमानदारी से बताता हूँ कि पहले तो मैं कहीं पे कोई मसला होता है तो हम जाते हैं तो उसको देखते हैं कि यार ये किस नौयत का बंदा है, क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा हमारे बच्चों के साथ भी होता है, हम तो 4 थप्पड़ मारेंगे, उसको पुलिस के हवाले कर दें, कानून के हवाले कर देंगे। मारेंगे जी। चले यहाँ से बात हम आगे चलाते हैं। ये तो तय हो गया ना कि आप जी। पहला रिएक्शन यही होगा कि आप 4 थप्पड़ जी मारेंगे, इसी तरह जैसे लोगों ने मारे। जी, मैं उसको सर। डिफेंड नहीं कर रहा, जी। वो गलत है, मैं भी करूंगा तो गलत होगा, क्योंकि मेरा पहला रिएक्शन भी बहुत सख्त है। जी जी इसी तरह। तो उस पे मुझे भी अल्लाह से डरना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ कि ये ज़हनी मरीज था और आइस का आदी था। जी। आपको पता था? ये सबसे ज्यादा इस दुनिया में ये चीज आप लोगों को पता जी थी। इसी तरह। आप लोगों ने उसको अलग प्रेमिसेस में रहने क्यों दिया? ये क्या वो घर उसके बाप का नहीं था? नहीं, वो या आप शोर उसके भाई नहीं थे, वो आपने उसको संभाला क्यों वो नहीं? शोर नहीं पसंद करता था। वो कहता मैंने अकेला रहना है। वो लड़ता था या गुस्सा कर जाता था, कभी कहता था मैं वली हूँ, कभी क्या, वो कहता मुझे अलग जगह चाहिए। वो वैसे किसी को भी तंग नहीं करता था। उस दिन उसको अचानक पता नहीं यार क्या एक हुआ। मिनट सुने भाई, जी। बुरा ना मनाइएगा। आपके साथ वो घर में लड़ता है क्योंकि उसको शोर पसंद नहीं है। जी। आपके साथ वो इख्तलाफ करता है क्योंकि उसके आपके साथ वो आपको पता है कि नशे ने उसके दिमाग पर क्या असर डाला हुआ है। आपने उसको उठाकर बाहर पूरी दुनिया के लिए एक्सपोज्ड छोड़ दिया, जी। और उसका नतीजा ये निकल आया ना। जब आपने उसको अनअटेंडेड छोड़ा है, जी। तो पहला जुल्म तो आप लोगों ने किया है ना। नहीं अनअटेंडेड तो नहीं, Unattended है ना, हमारे से मिलता था। सर वो खाना दुकान से चीज़ आके कुछ भी। पिस्तौल मांगता फिर है, आपको पता है इस बात सर का? वो उसकी कैफियत ही ऐसी है। वो तो घर पे जब आया, इसीलिए तो कहता हूँ कि उसको अनअटेंडेड नहीं इस छोड़ना पे जब चाहिए इतना था। जुल्म किया गया, उसके बाद भी वो ये कह रहा है कि मुझे पिस्तौल दे दो पुराना। उसको पता ही नहीं है कि मुझे किसी ने मारा हुआ है, उसको पता ही नहीं है अभी तक उसको। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना भाई कि उसको आपने पर्दे में रखना है। आइंदा जी। आइंदा उसको ऐसे नहीं छोड़ना। खुदा ना खास्ता वो किसी का नुकसान कर दे, खुदा ना खास्ता कोई उसका नुकसान कर दे, फिर रोने से बेहतर है कि हम आज उसके लिए जगह बनाएं। वो घर उसके बाप का घर है, जी। बाप की औलाद उसके भाई हैं। जी। वो क्या कहते हैं, भाई भाइयों की कमर होते कमर होते हैं, जी। तो यार ऐसे तो ना छोड़ो। ये हम भी मानते हैं कि हमारी गलती है, हम इसको जबरदस्ती बांधे रखते, बांधे नहीं रखते, उस पर पैरा दें, उसकी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं ना। जी जी, शुक्र कोई है ऐसा तो नहीं है कि सुबह की रोटी होती है, रात की होती शुक्र नहीं है है। जी, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का दिया हुआ है ना। जी, जी। 4 भाई हो यार आप जी, लोग। इसी तरह है। 4 भाई मिल के भी संभालें जी। तो भाई संभाल सकते हैं। मान सकते हैं। दोनों तरफ नालायकी हुई। एक शख्स अपने नशे या फिर मुबैना दिमागी अलालत की वजह से ये किया, जिसको किसी तौर डिफेंड नहीं किया जा सकता। उसका रिएक्शन बहुत कॉमन रिएक्शन बहुत सख्त होता है। दूसरी जानिब इधर तो हद ही पार कर दी गई। इसकी वाहिद वजह मैं आपको बता देता हूं कि जब वहां वाकया हुआ था तो बताया गया पुलिस को इत्तला दी गई थी, लेकिन क्या करें, पुलिस के पैरों में थे छाले। माजरत, माफी चाहता हूं, पुलिस के पैरों की तलियों में लगी थी मेहंदी, क्योंकि अगर वो पैर नीचे रखते तो मेहंदी खराब हो जानी थी, और अगर मेहंदी खराब हो जाती तो फिर शान और शौकत में कमी आ जानी थी। पुलिस के उड़न खटोलों को यहाँ पर आने की तौफीक नहीं मिली। तो जब तौफीक नहीं मिली तो ये अजियत हुई। और फिर उसके बाद आई मस्ट से थैंक्स टू द पुलिस चीफ ऑफ रावलपिंडी कि भाई चलें, देर आयद दुरुस्त आयद, आपने आकर अपनी जिम्मेदारी अदा की। इनके खिलाफ पर्चा देने जा रहे थे, इक़दाम कत्ल का, मुल्जिमान फैमिली, वो एक बेचारे पिसे हुए मरे हुए हैं और ऊपर दूसरे पर्चे की बातें हो रही थी। आई एम रियली ऑनर्ड एंड आई मस्ट से थैंक्स टू यू पीपल कि आपने चलें, देर आयद दुरुस्त आयद, कुछ तो ठीक किया। अभी सिचुएशन ये है कि मुल्जिमान जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है वो कानून की गिरफ्त में है, लेकिन तमाम नहीं है, क्योंकि एक ताकतवर शख्स जो है, और जब मैं ताकतवर कह रहा हूँ मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जहाँ से वो ताकत समेटता है वो इतना मुतबर और मुकद्दम इदारा है
کہ میں اس کو ملائن نہیں کرنا چاہوں گا, کسی ایک ورڈ سے بھی اس کو ملائن نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ اٹ از این ایکٹ آف انڈیویجول. تو میں ایک انڈیویجول کے ایکٹ کو جرنلائز نہیں کرنا چاہوں گا. اور دوسری طرف ہمارے ٹریفک پولیس سے تعلق رکھنے والے وہ باپ ہے جس کی بیٹی کو مارا تھا, وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے. بہرحال اللہ عافیت دے. دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے مسائل پر ماں باپ اتنے بڑے واقعات کر جاتے ہیں کہ جنریشنز تباہ ہو جاتی ہیں. اب یہ جو فیملی کھڑی ہے, میں آپ کو ایمانداری سے, میری آپ کی پہلی ملاقات ہے بھائی, اس سے پہلے ہماری کوئی ملاقات کوئی ملاقات نہیں, پہلی ملاقات ہے بھائی. آپ چچا ہیں؟ پہلی ملاقات ہے. پہلی ملاقات. یہ تو مرے ہی مرے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک ڈرگ ایڈکٹ, کسی کا بڑا بھائی ہے اور کسی کا چھوٹا بھائی ہے, کسی کا بھتیجا ہے, گھر میں خواتین ہیں, ان کو ایک نشئی کو سنبھالنا ہے, پھر نشے کی وجہ سے وہ ذہنی مرض کا شکار ہو چکا ہوا ہے. یہ تو مرے ہی مرے ہیں نا ہر حالت میں, ان کو اللہ ہی بچائے گا. اور دوسری جانب یہ معاملہ ہے, اللہ سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے. ڈریں اس وقت سے, خاص طور پہ مقتدر حلقوں میں موجود افراد, کہ یہ نشہ آپ کے گھروں میں گھسے, آپ کی بہنوں بیٹیوں تک پہنچے, آپ کے بچوں تک پہنچے. کیوں؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کے بچے بھی تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں. کیسا لگے گا کہ کل آپ کا بچہ کسی ایسے کھمبے کے ساتھ باندھا ہوا ہو اور پھر دھاڑ دھاڑ لٹریشن کی ویڈیوز آ رہی ہوں. تو ڈریں اس وقت سے اور آج کام کریں تاکہ اس عوام کے اور اس عوام کے بچے یہ ڈرگ کے دھندے میں خوار نہ ہو سکیں. ہمارے بچوں کو بچائیں, کیونکہ آپ ہمارے ہیں تنخواہ دار نوکر. جب آپ تنخواہ دار نوکر ہیں تو کام تو کرنا پڑے گا. نہیں کر سکتے تو جنازہ نہیں ہے بھائی, کرسی ہے, اس کو چھوڑیں, کوئی آپ سے بہتر آدمی آ جائے گا. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.